Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about the manufacturing of chocolate in the industry. First of all, I will give you a brief introduction about the history of the chocolate, where it actually came from, and why it is so much. It's an important part of confectionery in today's market, and how it make a huge impact on the industry, on the confectionery industry, in the economics of a country. Let's start. Uh, Read it carefully. Cacao trees were cultivated by the Aztecs of Mexico long before the arrival of the Europeans. The beans were prized both for their use as a currency and for the production of a spice drink called chiquetel. The Aztec emperor Montezuma is said to have drunk 50 jars or pitchers per day of the beverage, which was considered to have aphrodisiac properties, belief still held as late in 1712, when the Spectator newspaper advised its readers to be careful how they meddled with romances, chocolate novels, and the like inflamers. Chocolate was prepared by roasting the cocoa beans. It is cacao tree, and this is cocoa beans in earthenware pots before grinding them between stones. The mixture was added to cold water, often with other ingredients such as spice or honey, and whipped to a frothy consistency. And the first cocoa bean were brought to the Europe by Columbus as a curiosity, but were later exploited commercially by Don Cortes as a new drink. The Spaniards preferred their drink sweetened, and in this form, its popularity spread to Central and Northern Europe. In 1664, it was mentioned in England in Pape's diary, but was essentially still restricted to the wealthy. The introduction of milk into this chocolate drink was first recorded in the UK in 1727. Like in 18th century ही ये साइड डेवलपमेंट्स हो रही हैं. एस्टेक्स जो थे वो 1300 में 14th सेंचुरी में उन्होंने मायास के ऊपर जो है वो अमेरिका, ये अमेरिकन में एस्टेक्स बेसिकली अमेरिका में रहे थे. 13 से लेके 16 सेंचुरी तक. उससे पहले जो मायास थे, 13 सेंचुरी से पहले वहाँ पर के जो नेटिव थे वो मायास थे. मायास जो हैं वो वहाँ पर मीज़ो अमेरिकन या जो है वो मैक्सिकन्स थे, ठीक है. वहाँ पर फिर एज़टेक्स चले गए. एज़टेक्स जो थे वो इन 1664 में ये स्टार्ट उन्होंने किया था काम. उसके बाद इसमें 18th सेंचुरी के अंदर मिल्क की इंट्रोडक्शन हुई चॉकलेट ड्रिंक के अंदर. अभी तक नहीं पता चल सका कि क्यों उसने मिल्क ऐड किया था, बट इट कैन बी. जैसे जो हम टी पीते हैं इंडो पाक में, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल टी. द टी इज़ अ ड्रिंक ऑफ टी प्लांट ट्री. उसके जो ट्रीज़ हैं, ड्राइड लीव्स जो हैं, उसको अगर डाल के पानी में बॉयल किया जाए, दैट इज़ टी. लेकिन हम उसमें मिल्क भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, अब तो डिफरेंट जो कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस भी डाल देते हैं. जो जो दिल करता है डाल के तो चाय बना देते हैं. तो सिमिलरली ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है कि उसने इस ड्रिंक के अंदर जो है वो दूध डाला, तो जो है वो चॉकलेट जो है. अच्छा, आगे. मिक्सचर ऑफ ग्राउंड कोको बीन्स एंड शुगर. A mixture of the ground cocoa beans and sugar would not by itself produce a solid chocolate so familiar to the modern consumer. जो ग्राउंड कोको बीन्स जो हैं उसको अगर चीनी के साथ ऐड कर दिया जाए तो जैसी आजकल की चॉकलेट है वो नहीं बनती, बल्कि बहुत ही हार्ड सा सब्सटेंस बन जाता है जो कि प्लेजेंट नहीं होता. इन ऑर्डर टू एनेबल इट टू मेल्ट इजीली, इट इज़ नेसेसरी टू ऐड एक्स्ट्रा फैट. This can be obtained by pressing the cocoa beans and removing some of the fat content known as cocoa butter. When I told you about the ingredients used in the confectionery, वहाँ पर हमने कोको बटर का जिक्र किया था. ये वो फैट है जो कोको बीन से हमें, कोको बीन को जब हमें पर्टिकुलर वे में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास एक फैट कंटेंट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोको बटर. द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट दिस फैट वाज डेवलप्ड बाय 1828, यानी 19th सेंचुरी में वान हूटन ने हॉलैंड में ये फैट जो है ये
एक्सट्रैक्ट की। इसके डबल एडवांटेज था। जो एक्सप्रेस्ड फैट थी उसको सॉलिड चॉकलेट बार्स बनाने में यूज़ किया जाने लगा, और जो लो फैट कोको पाउडर था वो एज अ कोको पाउडर यूज़ होने लग गया मार्केट में। उसको आप एज अ फ्लेवरिंग यूज़ करते थे। क्योंकि ये जो कोको बटर होता है ये बिल्कुल ऑयल या फैट की तरह का होता है। इसके अंदर जो है वो फ्लेवरिंग्स नहीं होती। ये जब एक्चुअल चॉकलेट के साथ मिलता है तो इसकी फ्लेवरिंग्स डेवलप होती हैं। This drinking chocolate was in fact usually preferred as it was less rich than the original high fat mixture. Van Houten's development is even more remarkable when one considers that his factory and presses were entirely operated by the manpower. ये जो भी इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली थी फैक्ट्री वो मैन पावर थी। In 1847, however, Fry in Bristol in England used recently developed steam engines to power the first factory to produce tablets of plain chocolate. The solid form of milk chocolate is normally attributed to Daniel Peterhof, VV Geneva in 1875. In Switzerland, water powered machines were able to operate for long periods at an economic rate. This enabled the extra water from the milk to be driven out of the chocolate without incurring a large extra cost. Actually, previously जो है वो liquid milk जो है वो डाला जाता था, लेकिन क्या किया ये पीटर ऑफ वेवेज जिनेवा के अंदर है, इसने जो मिल्क को है जो कंडेंस फॉर्म में किया। कंडेंस्ड मिल्क या लेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क जब चॉकलेट के साथ ऐड हुई तो क्या हुआ कि इसकी कीपिंग क्वालिटीज़ यानी वाटर कंटेंट कम होने की वजह से कीपिंग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका जो टेक्सचर था वो उतना सबलाइम नहीं रहा। ये इसकी नोटबुक का पेज है 80s में जो उसने फर्स्ट जो है वो डेवलप की थी रेसिपी, इसकी मिल्क चॉकलेट की रेसिपी जो है, ठीक है ना, ये फिगर के अंदर दिया गया है। इसने जॉन वेवी ने पीटर ऑफ वेवे जनेवा में, ठीक है ना, डैनियल पीटर ऑफ वेवे ने जो डेवलप की थी फर्स्ट रेसिपी, और उसके ऊपर उसने अपना ये स्टैम्प भी लिखा था, राइट। Over the years, many different flavors of both milk and plain dark chocolate जो है ना वो plain chocolate बोलते हैं have been developed. Sometimes there has been a definite policy to develop a house flavor within a company. For example, in Cadbury Dairy Milk or the Hershey's bar. डेफिनेटली पॉलिसी या जिसे आईपी राइट्स बोलते हैं, ये तो हर एक के होते हैं। कैडबरी डेयरी मिल्क का जो फार्मूला है वो हर्शीज बार का जो फार्मूला है दोनों डिफरेंट होंगे। At other times, the flavor is adjusted to complement the center of the sweet, which is to be coated with chocolate. A very sweet center, such as a sugar fondant, may be best complemented by relatively bitter chocolate and vice versa. Like ये तो प्रीवियसली बात की जा रही है ना कि शुगर फॉन्डेंट लगा दी और बाहर डार्क चॉकलेट जो कि कड़वी होती है बेसिकली वो बना दी, या सम टाइम जो है वो एम एंड एम्स भी आते हैं। एम एंड एम्स जो होते हैं उनमें उनके अंदर पीनट या आलमंड रखा होता है, उसको कोट किया होता है चॉकलेट के साथ, और उसके ऊपर कलर वगैरह। तो for milk chocolate, one of the biggest flavor differences between the chocolates made from the milk powder, which are predominantly found in continental Europe, and the milk crumbs, ones of the UK and parts of the America. Milk crumb is obtained by dehydrating condensed milk and cocoa mass. यानी कोको मास के अंदर जो है वो कंडेंस्ड मिल्क आप डाल दें, मिक्स कर दें, फिर आप उसको जो है जब इवेपोरेट करते हैं और वाटर कंटेंट लो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मिल्क क्रम्ब। जबकि ये जो यहाँ पर जो मिल्क चॉकलेट की बात की जा रही है उसमें ये क्या पाउडर्ड मिल्क और चॉकलेट को मिक्स कर देते हैं। दिस वाज डेवलप्ड व्हेन मिल्क प्रोडक्शन वाज वेरी सीजनल एज कोको इज़ अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। इसमें ये होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती। जब आप कोको मास को मिल्क के साथ मिक्स करने के बाद इवेपोरेट करेंगे तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन द कोको विल प्रिवेंट द मिल्क टू spoil, right? The drying process also produces a distinct cooked flavor not normally present when the milk is dried separately.
ओके जी, ककाओ ट्री कल्टीवेशन के मेजर एरियाज जो हैं, अब वो ये बात होगी अब 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी के बाद जब 20th जो है वो सेंचुरी आई, तो नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर जो हैं, जहाँ पे सुटेबल इन्वायरमेंट होता है ककाओ ट्रीज के लिए, 3 ग्रोइंग एरियाज है: वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका। The seven largest cocoa producing countries are Ivory Coast, Ghana, Indonesia, Nigeria, Cameroon, Brazil, uh, Ecuador, and between them they account for 90% of the world crop. The fortunes of the various countries have changed significantly in recent decades. A main feature of the current pattern of production is the huge concentration, around 70% within West Africa. West Africa एक जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा है, सो ये क्योंकि इसका एनवायरनमेंट सूट करता है इस ट्री को, इसीलिए इसको उठा के जो है ये आराम से बाद में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करके जो है फिर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो कंट्री जो है वो proliferate करता है। Ivory Coast alone produces around 40% of the world crop. This means that future supply is vulnerable to the number of the factors such as the spread of the pests and diseases, weather, climate variations, political, social changes. In many areas, cocoa faces competition from other crops such as oil palm, robusta, coffee. ओके, बच्चों, कॉफ़ी जो होती है बेसिकली ये कोको बीन से ही बनती है। वो अरेबिका, रोबस्टा 2 अलग किस्म के प्लांट्स हैं, ठीक है, उनसे, और वो उसमें जो है वो उसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है। About 90% of the world's cocoa is grown by smallholders, usually on farms with mixed cropping system. ओके, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एक छोटा सा आपको दिखाया ट्रीज है, ये पॉड्स है। ये सॉरी, ड्यू टू कनेक्शन प्रॉब्लम। ओके, sorry, due to connection problem, I'm having this kind of problem. Okay. ओके, ये पॉड्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो बीन्स होते हैं अलॉन्ग विद सम जो है वो maize. Okay, the immediate post-harvest process of fermentation and drying are normal carried out on the farm are fermentation and drying. They are essential steps during which the cocoa flavor precursors are formed. Drying produces a stable, non-perishable commodity, making the crop ideal for smallholders in remote locations. Here is a small flow diagram about the processing of. This is basically the pod, and this pod contain these beans. Selecting good cocoa beans, these beans are extracted from these pods. Fermentation and drying जो है वो पहले ही pods की हो जाती है, फिर उसमें से जो है ये cocoa beans निकाले जाते हैं। ये cocoa beans की roasting and winnowing होती है। roasting and winnowing के बाद ये वाले cocoa beans जो हैं इनमें cocoa powder प्रेसिंग की जाती है, इसमें से कोको बटर निकाला जाता है, देन उसको री ऐड किया जाता है। उसके बाद ग्राइंडिंग की जाती है। रिफाइनिंग एंड कॉन्चिंग एक प्रोसेस है, ये हम आगे आपको बताएंगे। फिर टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग का आप लोगों को पता है, कंडीशनिंग यानी एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अलॉन्ग विद अदर इंग्रेडिएंट, एंड देन मोल्डिंग। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोको ट्री प्रोड्यूसेस पॉड्स। ये आपको पहले दिखाई गई है ये वाली पॉड्स। इन पॉड्स के कंटेनिंग अ पल्प एंड अ रॉ बीन, इसके अंदर जो है वो पल्प होती है और रॉ बीन्स होते हैं। द आउटर पॉड इज रिमूव टुगेदर विद सम ऑफ द पल्प एंड द बीन्स आर फर्मेंटेड। दिस enables chemical compounds to develop inside the beans. क्या पर्पस है ये इसकी फर्मेंटेशन का, इसकी रोस्टिंग का फंक्शन ये है कि ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं जो कि फ्लेवर को इन्हेंस करते हैं, प्रिकर्सर्स होते हैं फ्लेवर के। final chocolate. Failure to carry out this stage properly cannot be rectified by processing at a later. इसी स्टेज के ऊपर इसकी फर्मेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाद में
इसको कहेंगे कि बाद में जाके इसको कर, तो उस वक्त जो है ये पॉसिबल नहीं होगा वो फ्लेवर डेवलपमेंट. This is also true of the subsequent stage when the fermented beans are dried. Poor control can here give rise to molds, which give a very unpleasant flavored product, even if the fermentation has been carried out correctly. Similarly, where beans are accidentally contaminated with smoke from the faulty dryer, the resulting cocoa, क्योंकि इसके अंदर इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर कोको बटर जो है फैट की हाई क्वांटिटी मौजूद है. वो फैट जो है वो अब्जॉर्ब करती है इर्द गिर्द के फ्लेवर्स को. तो अगर स्मोक, पर्टिकुलरली स्मोक, इतना बुरा टेस्ट होता है उसका, अगर जो है वो इस स्टेज के ऊपर जो है वो स्मोक अब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी जो एंड क्वालिटी है उस पर बहुत इफेक्ट होगा. वो स्मोक जो ड्राइंग के लिए यूज़ हो रहा है. इन एडिशन करेक्ट ट्रांसपोर्ट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड व्हेन द बीन्स आर मूव्ड फ्रॉम द कंट्री ऑफ ग्रोइंग टू दैट ऑफ द चॉकलेट मैन्युफैक्चर. On arrival in the processing factory, it is necessary to clean the beans to remove metal and stone. ये वही वाला क्लीनलीनेस का प्रोसेस है जो हम हर फूड प्रोडक्ट जब वो प्रोसेसिंग प्लांट पे पहुंचती है तो करते हैं. इसमें जो एक्सटर्नियस मटेरियल, स्टोन्स, मेटल, अदर कंटेमिनेशन रिमूवल, या जो जिस किस्म की भी वॉशिंग हो, ड्राई वॉशिंग या उसको वेट वॉशिंग देनी हो. फिर उसके बाद फ्लेवर डेवलपमेंट होती है रोस्टिंग, बीन्स की रोस्टिंग के बाद, जो कि इसके शेल्स जो होते हैं उसके अराउंड बीन्स के, पहले पॉड है, पॉड के अंदर पल्प और बीन्स हैं. जब पॉड को खोल लिया जाता है तो बीन्स जो हैं उसके इर्द गिर्द भी एक लूजन सा शेल होता है, जैसे आपने देखा होगा ये दिस शेल. ये रोस्टिंग और विनोइंग प्रोसेस के दौरान जो है ये लूज हो जाता है. फर्दर फ्लेवर डेवलपमेंट इज सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग, ओके, एंड enable them to break more easily. Some chocolate manufacturers prefer to heat the surface of the beans to facilitate shell removal and to carry out the full roasting of the cocoa beans centers, either as whole pieces or as a liquid following grinding. Sometime ये होता है कि आप इसको जब ग्राइंड कर लेते हैं और लिक्विड की फॉर्म में थोड़ा सा ये आ जाता है बिफोर एक्सप्रेसिंग, तब भी इनकी रोस्टिंग हो जाती है. The beans are then broken and relatively lighter shell particles removed by winnowing action. The presence of shell in the final chocolate is undesirable. It will impair the flavor as well as causing excessive wear to the subsequent grinding machine. It shall also be noted that the shell content of the chocolate is legally restricted in some markets. In some countries, the shell itself has found a use in the horticulture. अच्छा जी, शेल रिमूवल भी हो गया, फिर ग्राइंडिंग होती है. अप टू दिस स्टेज द कोको इज डिस्क्रीट पीसीज सेवरल मिलीमीटर इन डायमीटर. सब्सीक्वेंट प्रोसेसिंग मे टेक सेवरल फॉर्म्स बट ऑल रिक्वायर द सॉलिड कोको पार्टिकल्स, शुगर एंड एनी. अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब तक हम उसके अंदर जो है वो कोई शुगर या मिल्क ऐड नहीं करेंगे तो हम जो है वो उसको, वो जिस फॉर्म में चॉकलेट हमारे पास अब आती है कि माउथ में रखते हैं वो मेल्ट हो जाती है, वो नहीं आएगी. अगर यहाँ पर हम ग्राइंड करते हैं तो वो एक हार्ड फॉर्म में हमें जो है वो पार्टिकल्स मिलेंगे. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर से जो एक्सप्रेस किए जाते हैं कोको बटर को एक्सप्रेस करके यानी एक्सट्रैक्ट करके, जो बाकी हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी. अगर तो हम जो है इसको एज सच मिल्क ऐड करके फर्दर चलाना चाहते हैं दैट्स ओके. लेकिन अगर हम इसके अंदर जो, क्योंकि मिल्क की फैट भी जो है वो इसकी जो है प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, इसकी टेक्सचर को स्मूथ करने में हेल्प करती है. लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम इसमें से कोको बटर एक्सप्रेस करते हैं और ऑन द लेटर स्टेजेस बाद ऐड करते हैं. मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ अचीविंग इज़ टू यूज़ ऑफ द रोल रिफाइनर्स इन ऑर्डर टू enable the chocolate ingredients to pass through the refiner. However, it is necessary to get them into the paste form. This may be done in a variety of ways. One of the most common is to grind the nib बोलते हैं उसको, bean को, to form cocoa mass which is liquid at temperature above the melting point of cocoa butter. ठीक है, कोको बटर से अबव टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड होगा, और अगर कम होगा यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होगा, क्योंकि उसके अंदर अभी कोको बटर मौजूद है. दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स हैमर मिल्स, डिस्क मिल्स, बॉल मिल्स, 3 रोल रिफाइनर्स combination of the four. Sugar can then be added in granulated or milled form, and the two mixed with extra fat and milk powder if milk chocolate is being manufactured. The mixing then includes some grinding, and traditionally a melange pan was employed for the purpose. This machine has a rotating pan, often with a granite bed, on which two granite rollers rotate. Scraper ensure mixing by directing the material under the rollers.
Modern requirement for continuous higher through put methods has often led to the mixing and grinding being carried out separately. Probably the most widely used it is the mix the initial ingredients into a paste and then grind this on a two-roll refiner. This gives a sufficient amount of crushing and mixing to provide a particle size and consistency suitable for feeding to five-roll refiner. Where chocolate crumb is used, this dehydrated mixture of condensed milk and cocoa mass is normally pre-ground to maximum size of 2 ml. This is then crushed and mixed with fat in order to provide a suitable paste for processing in the refiner. The most widely used alternative is the mill. Anyhow, this may result in different flavors from then all the ingredients are processed together. It is attributed this to the fact that when sugar particles are broken, the surfaces becomes very reactive and is able to pick up any flavor component in the vicinity. This will be different the cocoa is present as in the combined milling than if the ingredients are ground separately. What is conching? Although the fermentation, drying, and roasting are able to develop precursors of chocolate flavor, there are also many undesirable chemical compounds present. These give rise to the acidic and astringent taste in the mouth. The objective of the conching is to remove the undesirable flavor while developing the pleasant ones. In addition, the previous grinding process will have created many new surfaces, particularly of sugar, which are not yet covered with fat. These uncoated surfaces prevent the chocolate flowing properly when the fat is in liquid state. Because of this, the chocolate cannot yet be used to make sweets and does not have the normal chocolate texture in the mouth. The conching process therefore coats these new surfaces with fat and develop the flow properties as well as modifying the flavor. अब होता क्या है कॉन्चिंग में, ये बेसिकली एक काउंचर है. ये कॉन्च जो है ये इसके अंदर होता क्या है, इसमें नॉर्मली एजिटेटिंग करते हैं. जो चॉकलेट हमने पीछे ग्राइंड करके लेकर आए हैं उसकी एजिटेटिंग करेंगे बड़े सारे टैंक के अंदर. द मिक्सिंग कंटिन्यूसली चेंजेस द चॉकलेट सर्फेसिस एंड दिस कपल्ड विद सम हीटिंग एंड वेंटिलेशन इनेबल्स द वॉलेटाइल कंपाउंड्स टू एस्केप. एक पर्टिकुलर जो है वो टेम्परेचर सेट करेंगे और यहाँ वेंटिलेशन होगी. वो वेंटिलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हीट होगा और कंटिन्यूस एजिटेशन होगी. तो ये प्रोसेस जो है वो चॉकलेट जो ग्राइंडेड हमारे पास आई है उसको मॉडिफाई करेगी. सम मैन्युफैक्चर प्रेफर टू लिमिट द कॉन्चिंग टाइम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द कॉन्चिंग प्रोसेस टू primarily one of the liquefying the chocolate. दिस इज मेड पॉसिबल बाय ट्रीटिंग द कोको मैस एट एन अर्लियर. ये जो कोको मैस बना था पीछे ग्राइंडिंग करने के बाद, ग्राइंडिंग की, उसमें मिल्क ऐड किया, उसमें जो है वो शुगर ऐड की, वो एक हमारे पास कोको मैस बन गया. वो कोको मैस जो है जब उसकी कॉन्चिंग की गई, कंटिन्यूस उसको हीट प्रोवाइड की गई प्लस उसकी एजिटेशन की, तो उसकी शुगर मिल्क और जो हमारे पास से कोको बीन क्रश थे उन्होंने आपस में जो है वो उनके एक तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से वो जो है वो लिक्यूफाई हो गया. दिस इज मेड पॉसिबल बाय ट्रीटिंग द कोको मैस एट एन अर्लियर स्टेज इन ऑर्डर टू रिमूव सम ऑफ दीज लेस डिजायरेबल वॉलेटाइल केमिकल्स. ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, फ्लो डायग्राम. फर्मेंटेशन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है. फिर क्लीनिंग ऑफ बीन. फर्मेंटेशन होती है इन अर्दन पॉट्स, ठीक है. बड़े बड़े मिट्टी के जो है वो घड़े होते हैं, उनके अंदर बीन्स को डाल के उनको एयर टाइट कर दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर अ पीरियड उसके बाद उनको ड्राई, वो वहाँ पर उनकी फ्लेवर डेवलपमेंट होती है बेसिकली बीन्स के अंदर. फिर उसकी जो है वो ड्राइंग की जाती है, फिर क्लीनिंग होती है, रोस्टिंग करते हैं और उसके बाद जो है क्रैकिंग ऑफ बीन्स, जो उनकी शेल रिमूवल होती है. तो शेल रिमूवल के बाद हमारे पास बीन्स में से कोको निब निकलती है. जो कोको निब्स हैं उनकी ग्राइंडिंग करके उनको कोको मैस में सम टाइम जो है इसमें से हम एक्सप्रेस करके कोको बटर निकाल लेते हैं और दूसरे प्रोसेसेस में ऐड करते हैं. बाद में ये देखें कोको बटर यहाँ पे निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्सिंग विद शुगर एंड फैट विद, एक बार निकाल लिया फिर इसमें दोबारा से ऐड किया कोको मैस के अंदर. ओके. और फिर इससे हमारे पास जो है उसके बाद कम्बिनेशन या फिर डायरेक्टली इसको यूज़ किया और मिल्क शुगर सोल्यूशन डिहाइड्रेटिंग फॉर्म क्रम, यानी या तो हमने डायरेक्ट मिल्क के साथ यूज़ किया है या फिर हमने पाउडर के साथ यूज़ किया मिल्क पाउडर, या हमने जो है वो लिक्विडिफाइड मिल्क यूज़ किया. और उसके बाद उन जो भी हमारे पास निब थी उसको इन मिक्सचर्स के साथ मिलके ग्राइंड की, एडिंग फैट एंड कॉन्चिंग की, फिर हमारे पास स्वीट्स बन गई. स्वीट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जिसे बोलते हैं, वो बनी.
ये एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, इसको देख लें, समझ लें, और कोई भी क्वेश्चन हो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। ये अभी बहुत मैंने जो है वो कंसाइज़ किया है इस प्रोसेस को। ये बहुत डिटेल्ड है, ये फर्मेंटेशन, ड्राइंग, क्लीनिंग, एक-एक स्टेप बहुत डिटेल में है। आई विल ट्राई कि या तो मैं आपको ये खुद से अलग-अलग सारे प्रोसेसेस समझाऊँ, या फिर जो है कोई असाइनमेंट वाला सीन कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।